પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ કિસાનવાણી. એ રામ રામ ડાયાભાઈ રામ રામ. એ રામ 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 કાનજીભાઈ. હા બોલો. હવે તમને ખબર તો છે કે આ શિયાળો મકાઈની આપણે ખેતી કરવાના છીએ. હોવે. અને શિયાળો મકાઈની ખેતીમાં તમને એ પણ ખબર હશે કે આપણે પહેલાં વર્ષોથી બાપ દાદાઓ કરતા હતા એ જાતોને આપણે છે ને ખેતીમાં ઉપયોગ કરીએ તો આપણે આ ખાવા પૂરતું થઈ રહે, અનાજ આપણું થોડું ભેગું થઈ જાય. બાકી આપણે પૈસા જો લેવા હોય ને ભાઈ તો નવી નવી જાતોને આપણે ખેતી કરવી પડે. સાચી વાત છે. તમને ખબર છે અમુક જાતો તો એવી છે કે એનું છે ને તો ડાયરેક્ટ વેચાણ થાય, લીલા ને લીલા ડોળા વેચી દેવાના હે. અને અમુક જાત તો એવી છે કે એને હુકવ્યા પછી ધાણી ફોડીને વેચવાની, એટલે આપણી મકાઈ બગડે નહીં. અને એનો ટેમ છે ને આપણે જોઈ લેવો પડે, ટેમ જોઈને જ ખેતી કરવાની. ભાઈ દરેક વસ્તુનો ટાઈમ જોઈને જ એનું કામ થાય. વગર ટાઈમનું જો તમે કામ કરો, વગર વીરાનું તમે કામ કરો તો એમાં કોઈ ભલી વાર આવે નહીં. એટલે સમયની સાથે ચાલવું પડે. અને ટાઈમની જે તમે વાત કરો છો કે ઘણા લોકોના એમના જીવનમાં પણ અનિયમિતતા તો છે જ, કેમ કે વગર ટાઈમના હુઈ રહી 10 વાગે ઉઠીને સૂર્યનારાયણને ભગવાનને પાણી ચડાવે, રાતે 12-2 વાગ્યા સુધી મોબાઈલ મસળે અને 2 વાગે હુવે, એમ પાછા સવારમાં પાછા ફરી 10 વાગે ઉઠે. એટલે એ જે એમનું જે ટાઈમ વિરુદ્ધનું જે કાર્ય છે પ્રકૃતિ વિરુદ્ધનું થઈ જાય છે. એટલે તમારી વાત સાચી છે કે કોઈ પણ આપણે ખેતીનો પાક કરીએ તો એના ટાઈમે જો ઉરણ થાય, એના ટાઈમે કાપણી થાય, એના ટાઈમે પાણી મિલાય, એના ટાઈમે નેદમણ થાય તો આપણને ધાર્યું ઉત્પાદન મળે. હવે કોનજીભાઈ તમે ટેમની જ વાત કરી છે તો લો આ રેડિયો સાંભળવાનો ટેમય થવા આવ્યો છે તો આપણે આ રેડિયો સાંભળીએ. કિસાનવાણી કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ શ્રોતા મિત્રોને મૌલિન મુનશીને નમસ્કાર. કેમ છો ખેડૂત ભાઈઓ? ખેડૂત ભાઈઓ, ગુજરાતની અંદર મકાઈની ખૂબ ડિમાન્ડ છે. મોટા શહેરો હોય અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત, ત્યાં તો આજકાલ અમેરિકન મકાઈ એ યુવાનોમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે. એ જ પ્રમાણે છોકરાઓ પોપકોર્ન પણ ખૂબ ખાતા હોય છે. એટલે ઓવરઓલ જોવા જાઓ પંજાબી સબ્જી હોય તો એની અંદર પણ મકાઈની ખૂબ ડિમાન્ડ છે. તો મકાઈમાંની વિવિધ વેરાયટીઓની આજકાલ પુષ્કળ ડિમાન્ડ છે, એટલે મકાઈની ખેતી તરફ ખેડૂતો વળ્યા છે. તો આજે આ મકાઈની મૂલ્યવર્ધન ખેતી કઈ રીતે થઈ શકે, એના માટે કેવું બિયારણ જોઈએ, શું કાળજી રાખવી જોઈએ, એ વિશે માહિતી આપવા માટે અમારા ગોધરા આકાશવાણીના સ્ટુડિયોઝમાં ડૉક્ટર વિકાસ પાલી, જે મદદનીશ સંશોધન વૈજ્ઞાનિક છે, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીનું જે મુવાલિયા ફાર્મ છે દાહોદ, ત્યાં અત્યારે તેઓ કાર્યરત છે. સાહેબ બેઝિકલી છત્તીસગઢના છે, એટલે હિન્દી ભાષી છે, એટલે આપણે હવે પછીની વાત એમની સાથે હિન્દીમાં કરીશું. રસપ્રદ વાત એમના વિશે એ છે કે એમણે અળસી તમે બધા ખાતા છો, એમાં એમનું ડૉક્ટરેટ PhD એમણે કર્યું છે. એટલે ભવિષ્યમાં આપણે એમનો બીજો એક ટૉપિક અળસી વિશે પણ એમની પાસેથી એમના જ્ઞાન અને અનુભવનો લાભ લઈશું. પણ આજે મकई જે છે मूल्यवर्धित खेती विषय बात करीશું. डॉक्टर विकास पाली साहब, आपका आकाशवाणी स्टूडियोज़ में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है. जी धन्यवाद. नमस्कार सर. नमस्कार खेडूत मित्रों और बहनों. आज मैं आपको मकई में मूलवर्धक खेती और खासकर स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप कम समय में ये मूलवर्धक खेती मकई की करके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप उसको प्रॉफिट ले सकें. अच्छा, आप पाली साहब बताएंगे कि ये जो पॉपकॉर्न जी और ये जो स्वीटकॉर्न मकई है जी वो पाक की रूपरेखा और इसके जो महत्व है इम्पोर्टेंट, इसके बारे में आप मार्गदर्शन देंगे? जी बिल्कुल. पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मकई यहाँ खेडूत रोटला के लिए लगाते हैं, बट मकई में बहुत सी विविधता है कि इसमें हम जैसे आजकल शहरों में जैसे अहमदाबाद जैसे शहर है, सूरत जैसे शहर है, बड़ौदा जैसे शहर है, इसमें पॉपकॉर्न स्वीट मकई इस शहरों में बहुत डिमांड है. और धीरे धीरे आ विस्तार आ छोटी सिटी जैसे गोधरा है,
टू टायर सिटी में इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है आए के दिनों में। मकई की खेती जैसे करनी है, बट कुछ जानकारी ऐसी है कि कुछ समय पे आप अपने को कब उसकी पिकिंग करनी है। जैसे स्वीट मकई में, मीठा मकई में कौन सी जात लगानी है, इसकी जो पकने की जो अवधि है वो कब है, फूल कब आता है, कैसा रहता है डोडा, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि स्वीट कॉर्न क्या है और महत्व क्या है, और पॉपकॉर्न के बारे में। तो कुछ स्वीट कॉर्न, मीठा मकई, जो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, प्रचलित हो रहा है कि यह मीठा लगता है। ये नॉर्मल डोडा से 80 से 90 दिन के अंतर्गत में हमको इसका कटाई करना है। तो इसका जो मार्केट में वैल्यू है बहुत हाई प्राइस में जाता है। एक एक डोडा जो है 20 से 25 रुपए, ये एवरेज प्राइस बता रहा हूँ। जैसे बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, वो वहाँ तो 50 रुपये भी जाता है एक डोडा का प्राइस। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। जैसे सूप, जैसे बड़े होटलों में स्वीट कॉर्न सूप मिलता है, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा है। एक सूप 200 रुपये, 250 रुपये। तो मेरा कहने का मतलब है खेडूत मित्रों, आप ये खेती के प्रति अग्रसर हो। कम जो परंपरागत खेती, आप जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, जिसको मतलब बरसों से करते आ रहे हैं, उसको छोड़ के आप प्रॉफिटेबल वाली खेती में आओ। तो ये स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न में ये ઘણું બધું ફાયદો છે। તો આમે શું છે, આમે પ્રોટીન બી बहुत વધારે છે, પ્રોટીન બી વધારે છે, शुगर कंटेंट भी વધારે છે, हेल्थ बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक बात और खेडूत मित्रों इसमें बताना चाहूँगा, आप सब लोग पशुपालन करते हैं, तो इसका जो हरा चारा होता है वो पशु के लिए बहुत लाभदायक है, एडिशनल इनकम है। और इसका जो ईल्ड जो आता है, उत्पादन आता है ये हरा चारा का 8,000 से 9,500 केजी प्रति हेक्टर 100 गुंठा में। तो ये अगर चारा आप अगर अपने जानवर को, पशु को खिलाते हैं, तो गाय का जो दूध का उत्पादन है वो बढ़े छे, तो पाली साहब इसमें तो 2 गुना फायदा हो गया। 2 गुना फायदा, डबल इनकम। मकई बेचेंगे उसका फायदा, इसका जो घास है वो पशुओं को खिलाएंगे, दूध उत्पन्न बढ़ जाएगा, बिल्कुल, तो उससे भी इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगा। आप डोडा भी उसको ले सकते हैं स्वीट कॉर्न की तरह, और उसका जो चारा है उसको भी हम एज अ फॉडर भी ले सकते हैं। दूसरा है कि मिल्क की जो क्वालिटी है, जो दूध की क्वालिटी है, आपका फैट कंटेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट हाई है। तो प्रोटीन कंटेंट जब आप वो ये फॉडर को खाएगा, जब आपकी जो गाय भैंस जो पशु है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो दूध है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, और दूध की क्वालिटी बढ़ेगी तो आपको सरस दाम मिलेगा दूध का। तो इसके घणों बड़े फायदे हैं। और दूसरा है कि शहर में इसको और अलग अलग तरीके से इसको वेजिटेबल के रूप में भी खाते हैं। आजकल ये स्वीट कॉर्न का जो डोडा है उसको वेजिटेबल पर्पस को बॉईल करके खाते हैं। और आप जैसे मॉल वगैरह में जाएंगे, पॉपकॉर्न तो है ही, साथ में ये जो डोडा है, हरा डोडा है, उसको उसमें रस में डाल के उसको खाते हैं, पॉपी सीड बोलते हैं उसको, है ना। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और दूसरा पॉपकॉर्न के बारे में बताना चाहता हूँ कि पॉपकॉर्न जो है, ये इसका सीड थोड़ा महंगा आता है। इसकी वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक खेती कैसी करनी है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। कब आपकी उसकी सोइंग करनी है, कब उसकी बुआई करनी है, और कब उसको हार्वेस्ट करना है, मिट्टी है जो भूमि है उसको कैसे तैयार करना है। तो पाली साहब, आप ये जो हम बात कर रहे हैं, इसमें से एक नया पॉइंट पे निकला कि जो ये पॉपकॉर्न और ये जो स्वीट कॉर्न मकई है, उसके लिए अगर खेडूत भाई को खेती करनी है, तो उसके लिए जमीन की जो पसंदगी करनी है, तो जमीन की पसंदगी कैसे करे, और उसका जो वावेतर करना होता है, तो वो कब करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए खेडूत मित्रों, आज जमीन इसके लिए, मकई के लिए सबसे सारा में सारा जमीन जो छे उसके पास काली जमीन है, और गोराडू मतलब थोड़ी सी हल्की लाइट जमीन, जिसको लाइट सॉइल बोलते हैं इसको, अगर वो है तो बहुत अच्छा है। मगर मेरा जो अनुभव है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 6 साल का मेरे अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि मध्यम काली ज़मीन में सबसे अच्छा मकई आता है उसमें, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो कंटेंट रहता है वो उसमें वधार है काली ज़मीन में, एज़ कम्पेयर टू, मतलब जो अगर तुलना करें हम जो हल्की ज़मीन है उसकी तुलना में काली ज़मीन में बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट कंटेंट रहता है। और मकई जो क्या है उसमें आपको यूरिया ज़्यादा डालना पड़ता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसको ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये ज़मीन काली जो ज़मीन है वो सबसे सारम में सारी है। मध्यम काली और ज़्यादा काली भी है तो अच्छा है। क्योंकि गोधरा की जो ज़मीन है, गोधरा मकई संशोधन केंद्र की, थोड़ी सी लाइट है, तो वहाँ पे लाइट है तो उसके कारण उसकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी थोड़ा कम रहती है, अच्छा आता है। बट अगर आप उसको तुलना करें तो काली ज़मीन में बहुत अच्छा आता है। डोडा भी आपका बड़ा बनेगा, डोडा की लेंथ भी, जो उसकी लंबाई है, लंबाई बढ़ेगी तो आपकी आवक बढ़ेगी। तो इसके लिए मध्यम जो काली ज़मीन है वो सारम में सारी है। अच्छा, अब पाली साहब आप बताएंगे कि ये जो मकई का जो पाक है,
जी इसमें जो बियारण है जी तो इसका जो बियारण का जो बी है और जो वावणी तो इसके बीच में कितना अंतर रखना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका जो बुआई का समय है, जिसको ये अभी हमारा बुआई का बिल्कुल सही समय है, अक्टूबर 15 से नवंबर 15 तक, इसके बीच में खेडूत मित्रों आपको बुआई करना है इसका। और फिर अगर लेट होंगे तो उसमें उत्पादन आपका घट जाएगा। तो ये जो 1 महीने का समय है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, ये अभी जो समय चल रहा है, मेरे ख्याल से आपने खेतर की तैयारी कर ली होगी और ये बिल्कुल सही समय है। आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप बुआई कर दो, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न। अब बात आती है कि भाई इसका अंतर कितना रखना है। तो इसमें देखिए, कतार से कतार जो है, रो टू रो की जो अंतर है वो 60 सेंटीमीटर रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना है। ये दोनों उसमें ये सेम है, चाहे आप स्वीट कॉर्न का खेती करो या पॉपकॉर्न ना खेती, तो दोनों में यही है 60 × 20, रो टू रो, कतर से कतर 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर का दूरी रखना है। जी। और पाली साहब, ये जो मकई का पाक है, इसमें जो रासायनिक खातर है जी जी तो इसका प्रमाण कितना रखना चाहिए? जी देखिए, ये जो मकई है ये सबसे ज़्यादा इसमें जो खातर जो लेता है ज़मीन से वो सबसे वधार में वधार छे। तो इसमें हमको बहुत कंटेंट रहता है, वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो इसको हम कैसे देंगे मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें हम 3 अवस्था में देंगे। पहला बेसल मतलब होता है कि सोइंग के समय जब आप बुआई कर रहे हैं उस टाइम पे। फिर दूसरा है जब आपके घुटने तक, नी हाइट बोलते हैं इसको, घुटने तक आ जाए, मतलब 15 से 20 दिवस, खेडूत की भाषा में 15 से 20 दिवस के अंतर्गत में आपका पौधा जिसमें 3-4 पान आ जाए तो उसके नी हाइट पे। तीसरा जो देना है अपने को, वो देना है जब फूल आता है ना, पहला जो ऊपर में सबसे ज्यादा फूल, उसको वैज्ञानिक भाषा में टेसल बोलते हैं। उसमें 2 फूल आते हैं, नर और मादा। जो डोडा रहता है वो मादा है और जो ऊपर रहता है वो नर रहता है। तो जो नर फूल आता है 3 अवस्था में देना। अब कितना देना है, तो डीएपी अपने को 130 किलो देना है और यूरिया देना है 36 किलो। डीएपी में 2 कंटेंट रहता है। हम यूरिया इसलिए 36 किलो दे रहे हैं कि डीएपी में ऑलरेडी नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन फॉस्फोरस 40% उसमें रहता है ना। तो और ये पहले से बताया कि जो ये पॉपकॉर्न है जी, इसमें रासायनिक खातर का प्रमाण कितना रखना चाहिए? जी, पॉपकॉर्न में स्वीट कॉर्न से ज़्यादा हमको रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। इससे फर्क क्या होता है कि इसकी जो पॉपिंग होती है, पॉपिंग मतलब ये होता है धानी, जिसको पॉपिंग बोलते हैं, धानी, हाँ गुजराती में धानी। तो धानी अच्छे प्रॉपर तरीके से उसका स्वेलिंग हो, तो इसलिए ये इसका न्यूट्रिएंट का रोल बहुत है, खातर का रोल बहुत है। तो इसमें हम लोग को 4 अवस्था में पॉपकॉर्न में अपने को खातर देना है। पहला बेसल, सोइंग के टाइम पे डीएपी अपने को 87 kg, 87 kg, यूरिया 22 किलो और फिर अपने को 20 दिवस के अवसर पे देना है। 4 पान आ जाए मकई में 90 किलो। फिर बीजा 35 से 40 दिवन के अंतर पे 8 पान जब आ जाए, जो 8 पान आ जाए तो 90 किलो। तीसरा है फिर जब इसका नर जो फूल आता है उसमें 90 किलो। तो 4 बार अपने को खातर देना है। अच्छा, और इसमें जो निंदामण नियंत्रण माटे जी क्या करना चाहिए खेडूत भाइयों को? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है खेडूत मित्रों। इसमें आपको निंदा के बारे में 40 दिवस तक आपको ध्यान रखना है। एक बार आपकी पाक है वो बड़ा हो गया तो फिर निंदा आपको कुछ नहीं करेगा। तो जो निंदा जो होता है वो शुरू के अवस्था में 30 से 40 दिवस में कंपटीशन करता है, इसकी तुलना करता है, और उस समय हमने उसका रोकथाम नहीं किया तो हमारा उत्पादन घट ही जाए। तो इसमें हमको 2 बार करना है। वैज्ञानिक भाषा में हमको क्या करने का, प्री इमर्जेंस बोलते हैं, पोस्ट इमर्जेंस। तो खेडूत मित्रों, प्री इमर्जेंस ये होता है कि हमने मकई ना वावणी करी दी, उसके बाद में मकई उगने के पहले हमको उसको दवाई छंटवाना है खेतर में। तो उसके लिए एट्राजिन आता है। तो एट्राजिन 2 किलो आपको 500 लीटर पानी में घोल के, और 100 गुंठा की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको आपको स्प्रे कर देना है पूरे फील्ड में। तो इसमें आपको ओछा में ओछा वीट तो आएगा मगर ओछा में ओछा हो जाएगा। तो बीजा है। इसके बाद में आता है पोस्ट इमरजेंस। तो पोस्ट इमरजेंस का बात है जब आपका मकई बड़ा हो गया, 30 से 40 दिवस का हो गया, तो उसके बाद में आता है एक केमिकल आता है, उसका नाम है टेम्बोट्रॉन, साइंटिफिक नेम है, और इसका नाम लोकल नाम एग्रो में जाएंगे तो आपको लाउडिस नाम से मिलेगा। तो वो पानी में मिलाकर, वो पानी में 325 ml 500 लीटर पानी में आप मिला के उसको आप स्प्रे कर देंगे तो पूरा वीड आपका, ये बहुत अच्छी दवाई है, ये मैंने इसका पर्सनली खुद इसका इफेक्ट देखा है। लाउडिस का पूरा आपका जो वीड है, खरपतवार है, नींदा है, वो पूरा सूख जाता है।
अच्छा पाल साहब, ये बताएंगे कि ये जो मकई का जो है वावेतर हम कर दे, जी। फिर इसका क्या रख रखाव या ध्यान हमें रखना जी, है, जी, कैसे रखना है? देखिए मकई में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खेडूत मित्रों, इसमें इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन मतलब जो है मिट्टी चढ़ाना, पाड़ा चढ़ाना जिसको बोलते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये 30 से 35 दिन की जो अवस्था होती है, जब मकई आपका नी हाइट से थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो आपको पाड़ा चढ़ाना पड़ता है। पाड़ा चढ़ाना क्यों पड़ता है कि आप पाड़ा चढ़ाएंगे उससे दो फायदे हैं। एक तो आपका ये जो हवा आती है, विंड, तो उससे आपका जो मकई है वो गिर जाता है, आपका पौधा गिर जाता है। तो एक तो आप उसको चढ़ाएंगे, मिट्टी को चढ़ाएंगे तो वो मजबूत होगा। दूसरा इसमें मॉइस्चर, जैसे आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो मॉइस्चर रहेगा, तो उसके लिए मॉइस्चर का भी काम कर लेगा। दूसरा है कि प्लांट को एरेशन मिलेगा, हवा मिलेगी। आप मिट्टी को अगर नीचे से ऐसे वो चढ़ाएंगे तो सॉइल के अंदर में हवा के पार्टिकल्स जाएंगे, हवा के कण जाएंगे, तो वो पौधे के लिए अच्छा है। जी। और ये जो मकई का पाक जो खेडूत भाइयों को करना है, किसान को करना है, तो उसमें जो पानी की जरूरत यानी कि जी, जी। पियत, हाँ। पियत की महत्व क्या, कितना होना चाहिए? मकई ऐसी क्रॉप है, ऐसा ही पाक है कि इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कम। मगर रबी मकई में अपने के पास 6 से 7 पानी चाहिए। और ये जो पाक है स्वीट कॉर्न ना और पॉपकॉर्न ना पाक, इसमें पानी आपको कम से कम 10 से 12 दिन की अवस्था में रेगुलर डालना है। मैक्सिमम 15 दिवस में, 15 दिवस मानो मोटा मोटा कि 15 दिवस की अवस्था में डालना है। एक तो आपको सोइंग के बाद करने के टाइम पे डालना है, बुआई के समय। उसके बाद हर 15 दिवस में आपको 5 से 6 बार। बहुत पानी की जरूरत नहीं है उसको। बहुत पानी की जरूरत नहीं, इतना गीला होना चाहिए, हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, वेज होना चाहिए कुछ उसमें। पाक ऐसा है कि उसको हर रोज पानी चाहिए, मगर इसमें हर रोज पानी की जरूरत नहीं इसमें हर रोज पानी की जरूरत नहीं है। जैसे डांगर है उसमें पूरा बहुत पानी चाहिए, मगर आप मकई पाक ऐसे है कि इसमें पानी इतना होना चाहिए कि मॉइस्चर होना चाहिए, आपका वेज होना चाहिए। वेज है तो बराबर है, ठीक है, बराबर। ठीक। अच्छा पाली साहब, ये जो स्वीटकॉर्न मकई है जी उसका कटिंग कब करना चाहिए? जी, स्वीट कॉर्न ना मकई का जो सिम्टम है, जो उसका लक्षण है, उसका सबसे बड़ा लक्षण है आज जो डोडा छे, डोडा बाजू जो मूछ छे, वो एक तो भूरे कलर का हो जाएगा, है ना, वो भूरे कलर का। दूसरा आप कैसे खेडूत मित्रों उसको पहचानोगे कि एक तो आपने जो बावणी की है वो तारीख आप नोट कर लो आपके उसमें, तो उस तारीख से 80 से 90 दिवस के बीच में आप समझ जाओ, या 85 से 90 दिवस के बीच में इस बीच में आपका डोडा पक जाएगा। इसमें आपको हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्ट करना है। और आप दूसरा क्या कर सकते हो कि डोडा का थोड़ा सा उसका जो छिलका है उसको निकाल के आप उसमें डोडा को जब प्रेस करेंगे तो उसमें से थोड़ा सा निकलेगा, दूध जैसा निकलेगा हल्का, तो वो अवस्था आपको बताती है कि आपको ये डोडा को निकाल लेना है, उसको मार्केट के लिए रेडी हो गया है वो बेचने के लिए। शहर में भी जब लोग ये अमेरिकन मकई या दूसरी मकई है तो इसके छिलके निकाल के वो नख मार के देखते हैं, नख मार के, हाँ, क्या दूध निकलता है कि दूध निकलता है कि नहीं निकलता कि नहीं। वो दूध निकल रहा है तो वो सारम में सारी अवस्था है कि आपका जो स्वीट कॉर्न तैयार हो गया है मार्केट में बेचने के लिए। और ये पाली साहब, ये जो मीठी मकई जी और पॉपकॉर्न, जी ये जो दोनों की खेती, इसमें जो ध्यान रखना है खेडूत भाइयों को, जी तो वो क्या क्या है, वो जब आप शॉर्ट में बताएंगे? जी बिल्कुल। देखिए खेडूत मित्रों, इसमें सबसे 3-4 मुद्दे जो हैं बहुत ध्यान में रखने की वाली बात है। सबसे पहला इसमें मुद्दा है, जैसे आपको पता चल गया कि भाई हमारी मकई तैयार हो गई है, अब इसको काटने का समय आ गया है, तो काटने से 6 से 12 कलाक तक आप उसको रखो। जैसे आज आपने काटा, आपको सांझ का समय हो गया तो 5 बज गया, तो अगले दिन आपको तुरंत मार्केट लेके जाना है। तो ये उसमें क्या है, उसकी क्वालिटी जो रहती है, जो मकई है, मीठी मकई है, ये क्वालिटी है। अगर आपकी क्वालिटी गिर जाएगी तो आपको बाजार में दाम ओछा मिलेगा। तो आपको सारा में सारा प्राइस चाहिए, सारा में सारा वो चाहिए, तो आपको 6 से 12 घंटे के अंदर इसको आपको मार्केट में ले जाना पड़ेगा। बराबर। तो ये बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, इसमें एक कीट आता है आर्मी वॉर्म करके। आर्मी वॉर्म इसलिए बोला जाता है कि सेना पूरा वो जो अटैक करती है एक साथ, सेना लेके आती है। इल्ली ना सेना समझो। तो इल्ली कब लगता है, जब इसका डोडा लगेगा तब उसमें, तो ये पान में घुस जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इल्ली ना लगे। तो वो जो आर्मी वॉर्म के लिए एक इसका दवाई आता है, इमेक्टिन बेंजोइड, ऐसा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसको आपको 4 ग्राम आप इसको पर पंप में आप मिला के इसको स्प्रे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, अगर आता है तो। आता है तो बहुत
बुरी तरीके से आता है पूरा खेतर में फैली जाएगा, इसलिए आपको उसको अलर्ट होना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आ गया है, आप देखना है, आपको जोड़ना है फील्ड में जाके खेतर में कि 2-4 पौधे में आ गया है और तुरंत इसका दवा का छिड़काव कर दीजिए। पाली साहब, मैंने ये भी देखा है कि जब मकई तैयार हो जाती है जी तो बहुत पक्षी उसके दाने खाने के लिए भी आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसका लिए भी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। બિલકુલ ये કોમન સમસ્યા છે ખેડૂત મિત્રો, આ સ્વીટ કોર્ન में નથી, आप बीजे सभी जो मकई का जो रोटला माटे करो, पीली मकई करो, आ सब में अब पक्षी का बहुत बड़ा प्रकोप है। तो पक्षी माटे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है प्रैक्टिकली। एक तो आपको ऐसे बोर्ड है जो साइनी बोर्ड है, जो चमक, जो जिससे चमक निकलती है, तो वो उससे क्या होता है, आप ये बोर्ड लगाओगे चमक वाली बोर्ड में तो उसकी जो सूरज की किरण है वो उस पर पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा उस पर, तो रिफ्लेक्ट होगा उनकी आंखों में, तो वहाँ पे पक्षी नहीं बैठेंगे। दूसरा चीज़ है कि आपको खेतर का चुनाव ऐसा करना है जहाँ पे पेड़ पौधे कम हो, तो जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे वहाँ पे पक्षी ज़्यादा बैठेंगे और वो वाला खेत, बाजू वाला खेत आपका नुकसान करेंगे। बराबर। पाली साहब, एक बताएंगे कि जो मकई है तो उसकी इम्पोर्टेंट जो है जात कौन कौन सी है जी, और इसके जो बीज है जी वो कहाँ से मिलेगी? जी ખેડૂત મિત્રો, આ जो स्वीट कॉर्ननी जो पाक है उसमें आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मकई संशोधन केंद्र से मधुरम करके जो जात है वो बाहर पड़ी है और सारम में सारी जात है। तो ये जो जात, इसका नाम है गुजरात आनंद स्वीट कॉर्न हाइब्रिड 11 नंबर से आप स्वीट कॉर्ननी जात अगर पूछेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये और पॉपकॉर्न में है, महासेवता के नाम से है, गुजरात आनंद पॉपकॉर्न हाइब्रिड 21। तो आ 11 नंबर और 21 नंबर ना आ 2 जात है स्वीट कॉर्न माटे और पॉपकॉर्न माटे। इसका जो बीज है मुख्य मकई संशोधन केंद्र गोधरा और गुजरात स्टेट सीड कॉर्पोरेशन से आपको मिल जाएगा। 2 केंद्र से आपको यहाँ से सीड भी, आपको बियारण जो है वो आपको मिल जाए। तो ये दो जात हैं जो रिसेंट वाली जात है और सारम में सारी जात है। ये बहुत आपने अच्छी बात बताई। और पाली साहब, आप अपने कीमती समय निकाल के यहाँ आकाशवाणी स्टूडियोज में आए और हमारे श्रोता मित्रों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की, उनको बहुत वैज्ञानिक मार्गदर्शन दिया। तो आकाशवाणी गोधरा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और खेडूत मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आभार। लेर गगन मालागी रे मन सतगुरु मड़िया, लेर गगन मा लागी रे मन सतगुरु मड़िया। सतगुरु मड़िया मन सतगुरु मड़िया, सतगुरु मड़िया मन सतगुरु मड़िया। लेर गगन मा लागी रे मन सतगुरु मड़िया, लेर गगन मा लागी रे मन सतगुरु मड़िया। त्यागी में तो जो यूर जागी, आप प्यूर त्यागी में तो, आप प्यूर त्यागी में तो जो यूर जागी। घटड़ा में जो तू जागी रे मन सतगुरु मड़िया, घटड़ा में जो तू जागी रे मन सतगुरु मड़िया। लेर गगन मा लागी रे मन सतगुरु मड़िया।
સુમિરણ કરતા મને હા મારે મળ્યા, સુમિરણ કરતા મને જય હો, સુમિરણ કરતા મને હા મારે મળ્યા, સંત બડા રે સુહાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા, સંત બડા રે સુહાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા હો. લેર ગગનમાં લાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા. પૂરણ કમાણી મારી સુરતા રે રાણી, પૂરણ કમાણી મારી, પૂરણ કમાણી મારી સુરતા છે રાણી, નામની ઓહો નામની જ્યોતું જાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા, નામની નોબત લાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા. લેર ગગનમાં લાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા. દાસ બળદેવ ગુરુ, દાસ બળદેવ ગુરુ સવારામ મળ્યા, દાસ બળદેવ ગુરુ સવારામ મળ્યા, ભવની તે ઓહો ભવની તે ભવની તે ભવની તે ભવ જોને ભાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા, ભવની તે ભવ જોને ભાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા. લેર ગગનમાં લાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા, સતગુરુ મળ્યા મને સતગુરુ મળ્યા, સતગુરુ મળ્યા મને જય હો, સતગુરુ મળ્યા મને સતગુરુ મળ્યા. લેર ગગનમાં લાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા, લેર ગગનમાં લાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા, લેર ગગનમાં લાગી રે મને સતગુરુ મળ્યા. કોનજીભાઈ ઓ જોયું? હવે ડાયા હવે આપણે છે ને આ ટાઈમસર ખેતી કરીશું તો કંઈક આપણે છે ને તો બે પોંદડે થવાની વાત થશે, નહીં તો આપણે છે ને ફરી પાછા પગદંડીને એના એ રસ્તા ને આપણે ચાલવાનું પણ એનું એ જ, સાચી વાત છે. એટલે પણ ભાઈ એમાં કોઈ ફેર નહીં પડે. બરોબર. એટલે જો ફેર પાડવો હોય તો કંઈક બદલવું પડશે, બરોબર છે. અને એ વાત હાથે આપણે હવે છૂટા પડીએ. એ આવજો. રામ રામ. રામ રામ. પ્રસ્તુત કાર્યક્રમ કિસાન વાણી જે હવે સમાપ્ત થાય છે.